So I hope now you are able to see the screen as well now. Okay. Yes, Okay. sir. So we are talking about project. No, in the project you can see that on the screen. Uh, we have talked about the ideas. We have talked about brainstorming, and this is absolutely truth that whatever project we are applying, or whatever project we are making, we should have acquired the skill requisite for that. So it is very much important that we should have a skill. Suppose if you are working with Arduino, so we should be able to know how to program Arduino. If you are working with any kind of microcontroller, we should have embedded C programming for that. Or if you are working on any kind of suppose Android application development, so we must know the applications are like Java programming for making an Android applications. So these are actually important part of thing which we need to acquire. So we are hoping that you must have acquired the whatever skills are required during these 6 semesters. And if you are found that, if you think that I am somewhere not be able to be proficient in that particular skill, then there are so many online courses available. So in lockdown period we don't have any other option than that. So please go for those courses, or you ask people ki I want to develop this skill proficiency, so which course will be suitable for me, so they will be accordingly able to guide you, your teachers, your guide. So you can ask anyone. So like these are the three things which we are already expecting that this has been covered. And now another part is what is project. So project, we will define the project in this discussion. We will talk about our stakeholder management, we will talk about the scope planning, and then we will talk about project life cycle and schedule management. So these are the things which we are going to consider. Now here if you talk about this thing, uh, definition, project management, what is project? So there is a kind of definition for us. In that definition we will say that project is some activity that we are supposed to, we should have a start date for that, we should have a end date for that. These are the very important aspects of a definition. So we have to state that when our project will be able to, when we are able to start our project, and when we are able to finish our project. These are the important parts which have to be there in a definition. So this is regarding the project definition. Then when you can say that your project has completed. Okay, so these are only, there are only three possibilities where we can be able to say that our project is completed. Here we will be able to say that ki whatever objectives we have set for a project has been achieved, we can say that the project has been completed. Or it may be possible that somewhere we have realized that the objectives are not, we are not able to achieve those objectives, or those objectives now a time does not play any role in society, or our management is not supporting that objective, so we may have to abandon the course, abandon the objectives, abandon our scope. Then we will say that in that case, okay, it has been closed, the project has been closed. Or the third point of thing is the time limit has been achieved. अब अगर ये सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है तो वी शुड बी एबल टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट विद इन दिस सेमेस्टर ओनली. अगर वो सेमेस्टर खत्म हो जाता है तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया. तो यानी हम जब बात करते हैं प्रोजेक्ट के डेफिनेशन की, तो प्रोजेक्ट के डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो एक्टिविटी है उसके अंदर स्टार्ट डेट और एंड डेट भी इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद में अगर आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, अब ये आप कैसे पता लगा पाओगे कि प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, फुलफिल हो गए और टाइम लिमिट के अंदर, तभी हम बोल पाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है. ठीक है. उसके बाद में अब अगर हम प्रोजेक्ट जब करते हैं तो इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे. तो अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसमें कॉस्ट लगती है, कुछ पैसा लगता है. अब आप कितना भी पैसा नहीं डाल सकते हो या कम भी पैसा नहीं डाल सकते हो, तो ये एक लिमिट है. आप जितना उसको ज्यादा, अब उसका स्कोप होता है यानी करना क्या है. अब एक्टिविटी है, जैसे किसी की एक्टिविटी है कि हमको कचरा पिकअप करना है,
समुद्र के किनारे का। तो ये एक्टिविटी में आप अगर देखोगे तो इनको स्कोप यहाँ पे डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो स्कोप इन्होंने क्या, ये अगर ऐसे ही नहीं बोल सकते कि वी आर पिकिंग गार्बेज फ्रॉम बीच, ऐसा नहीं बोल सकते। तो दे हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज इन डिफाइनिंग द स्कोप कि ये क्या उठा रहे हैं, कौन से बीच पे उठा रहे हैं, कैसा ग्राउंड होएगा, इनका जो डिवाइस है कहाँ तक जाएगा, कितना पानी में उतरेगा, कितना पानी के बाहर रहेगा, कितने किलोमीटर का एरिया साफ करेगा, कितने मीटर के अंदर। यानी दे हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक व्हेन दे डिफाइन देयर स्कोप। अगर ये स्कोप मेजर्ड, जैसे मेजरफुल क्वांटिटी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी अनमेजरेबल, इट शुड बी मेजरेबल क्वांटिटी, तो ही हम बता पाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसलिए जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसके कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट है, स्कोप इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिस्क एक और है जो कंस्ट्रेंट इसके में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसोर्सेस और टाइम। यानी अब अगर हम प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, हमने जो उसमें रिसोर्सेस मांगा, अब वो रिसोर्सेज ऑनलाइन ही अवेलेबल है, अब वो रिसोर्स हम किसी बाहर की कंट्री पे डिपेंड है। अब लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर हम वो ऑर्डर भी कर देते हैं तो उसको हम तक आने में अगर महीनों लग जाता है, जिसमें हमारी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, तो ऐसा प्रोजेक्ट तो हम नहीं कर सकते ना। So all these things are important when we define a project. So project definition does not mean a normal kind of definition like ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नहीं। प्रोजेक्ट डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, व्हाट इज अ यूनिकनेस, व्हाट इज यूनिक इन आवर प्रोजेक्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो जैसे मैंने बताया कंस्ट्रेंट्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है, और खास बात ऐसे होती है ना, ये जो कंस्ट्रेंट है आप एक साथ में सिर्फ दो ही चीज आप मैनेज कर पाते हो। अगर आपने सोचा, अगर तीन लोग चीज की हम बात करते हैं, कॉस्ट स्कोप और शेड्यूल की, we'll be, that is what an important thing is कि when we define a project we should be able to include the part like normal definition, then uniqueness, then time limit, then end with the objective or accomplished or abandoned, then the project constraints are also important। and I said that we can manage only two constraints। अगर आप सोचते हैं कि मैं स्कोप बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा। अगर आप बोलते हो कि जल्दी टाइम में करना है तो फिर हो सकता है कॉस्ट बढ़े और टाइम कम हो। यानी ये चीजें इंटर रिलेटेड है, यू कैन नॉट मैनेज मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, सो वी हैव टू पे समवेयर। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, एक को बढ़ाने जाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरे को बढ़ाने जाओगे तो कहीं पे भी तो हमको एक ट्रेड ऑफ सेट करना पड़ेगा कि नहीं भैया ये इतना ही हम स्कोप ले सकते हैं, इतना हमारा शेड्यूल है और इतना ही हम पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो ये चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब हम प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब बात आती है, नेक्स्ट थिंग इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल, तो इट हैज इनिशिएशन, फेजेस होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में, इनिशिएशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और क्लोजिंग। ये चार फेज है जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। क्लोजिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जितनी इनिशिएशन। अब जब हम बात इनिशिएशन की करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या रेडी होना चाहिए कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कोई आदमी स्पॉन्सर करता है तो हमारे पास में स्पॉन्सर की डिटेल्स रेडी होनी चाहिए कि कौन कितना पैसा लगा सकता है। अगर हम सेल्फ फाइनेंस्ड है तो हमारी भी कैपेसिटी उस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाने की है वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए शुरुआत में ही। आगे चलने के बाद में वो गड़बड़ हो सकती है। तो आपका ठीक है, जो आप प्लानिंग से करोगे तो it will exactly match, it may not exactly match, sometimes we may have to spend little more, sometimes we have to spend little less। ये कब होएगा? अगर if you are increasing your scope। तो ये चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे पास में स्पॉन्सर होना जरूरी है, हमारे साथ में डिलीवरेबल्स भी होना जरूरी है। डिलीवरेबल्स मतलब क्या कि हम ये प्रोजेक्ट में क्या देना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद में हम क्या आउटपुट देना चाहते हैं, वो भी हमारा क्लियर कट इनिशियल स्टेज में ही डिफाइंड होना चाहिए। और वो भी कौन सा होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, एंड दैट टू बी मेजरेबल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया? नेक्स्ट कि रिस्क, हमारी रिस्क कितनी इन्वॉल्व है वो भी होना चाहिए। बजट इज अप्रूव्ड। अब अगर आपका स्पॉन्सर है, आप
तो वो बजट भी आपने अप्रूव करवा के लेना है कि इतना मेरे प्रोजेक्ट में खर्चा लग सकता है, जो भी आप में आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाला है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इनिशिएशन होती है, वो होती है स्टेक होल्डर्स का आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन है। अब ये स्टेक होल्डर्स कई सारे हो सकते हैं। अब ये स्टेक होल्डर को डिफाइन करने की एक बड़ी प्रोसेस है, एंड दैट वी हैव टू फॉलो। स्टेक होल्डर तो हमारे क्लासमेट्स भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा कॉलेज हमारे प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर्स है, हमारे टीचर हमारे स्टेक होल्डर्स है, हम जिसके साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रुप मेंबर हमारे स्टेक होल्डर्स है, हम जिनके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो यूजर्स है, वो हमारे स्टेक होल्डर्स है। इस तरीके से स्टेक होल्डर्स हमारे कई ज्यादा हो सकते हैं। बात है इनिशिएशन के बाद में आते हैं प्लानिंग की। अगर आपने डिलीवरेबल्स आपके क्लियरली डिफाइन कर दिए हैं, देखो इंपॉर्टेंट बात है, एक से रिलेटेड दूसरी चीज है। हमने क्या बोला, इनिशियल स्टेज में हमको डिलीवरेबल्स क्लियरली डिफाइन करने चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट क्या काम करने वाला है। अगर वो फाइनलाइज हो गया है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या काम करने वाला है, अब इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है कि ये जो काम है इसका हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएं। अब ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्यों इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है? क्योंकि एक बार अगर हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन गया तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या क्या काम करना है। अब जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें आपने, तो आपको डिजाइन पार्ट है, आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट है, आपका पीसीबी बनाना है, आपका उसका कंटेनर बनाना है, फिर आपको उसको टेस्टिंग करना है। तो अब आपने क्या करना है, उसके जो चंक्स है उसको डिफाइन करना है, यानी वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर। टास्क को सब टास्क में बनाना है, सब टास्क को और अगर डिफाइन करते और डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड करना है। तो ये सेक्शन कहां में आएगा, हमारा प्लानिंग में आएगा। तो प्लानिंग ये सब चीजों को सेक्शंस डिवाइड करके रखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जब हमारा एक बार आता है अब तो हम प्लान कर सकते हैं। और जब हम प्लान बनाएंगे तो उसके लिए हमको किसको किसको मैनेज करना पड़ेगा, हमारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना पड़ेगा, इनके साथ हमारे को कम्युनिकेशन मेंटेन रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी मैनेज करना पड़ेगा, हमारे को हमारे प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी मैनेज करनी पड़ेगी, हमारे को रिस्क भी मैनेज करने पड़ेंगे, और हमको कॉस्ट भी मैनेज करनी पड़ेगी। तो यानी ये क्या होने वाला है कि जब अपन प्लानिंग में डिफाइन करते हैं तो प्लानिंग डिफाइन करते वक्त हमको ये चीजें देखनी चाहिए कि ये सब हम क्लियरली मैनेजेबल रखें, इनको मतलब हम तैयारी रखें कि हमको ये चीज करनी है। रिस्क मतलब क्या, रिस्क मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा कि ये चीज मैं मंगा रही हूँ, ये चीज मैं खरीद रही हूँ और ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी, और जब आपने वो चीज लाई, मंगाई, खरीदी और आप इंप्लीमेंट करने गए तो हो सकता है आपके इंप्लीमेंट करने में एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट had happen, एनी काइंड ऑफ थिंग had happen, और वट एवर योर थॉट कि ये चलेगा वो चला ही नहीं। तो दैट हैज काइंड ऑफ अ रिस्क generated and it will kill time as well. So you should be ready, you should be planned how to manage that risk as well. So this profound kind of thinking is very much necessary when you talk about a प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है। हमारे रिसोर्स कहाँ से आने हैं, उसको हम खरीदेंगे कैसे, आने कैसे चाहिए, वो हमको पूरा प्लानिंग में तैयार रखना चाहिए कि कहाँ से ये आने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कब चीज मंगानी है, ये सब के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके बाद में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो आपने क्या किया है, आपने अपने प्रोजेक्ट के चंक्स बना के रखे हैं, आपने उसको डिवाइड करके रखा है, WBS बना के रखा है, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपके पास है। आपके पास में छोटे 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 इंडिपेंडेंट काम है, अब वो काम आपको असाइन करना है अपने प्रोजेक्ट ग्रुप मेंबर्स के बीच में। अब ये बात कहाँ आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। फिर आपको खरीदने की चीजें है वो कहाँ पे मंगाई जाए। आज का लॉकडाउन का पीरियड है, आप एक सेंटर पॉइंट पे चीजें नहीं मंगा सकते, कुछ चीजें किसी के यहाँ आएगी, कुछ चीजें किसी के यहाँ आएगी, अब उसको वो सेक्शंस करने हैं। ओके, जैसे आपको फिर वो हिसाब से हो सकता है कोई चीज आपको डबल मंगानी पड़े, क्योंकि अगर हम देखें एक ही प्रोजेक्ट है उसको 3 काम करने हैं, तो अब वो टेस्ट करने के लिए प्रोसेसर तो लगेगा, सीपीयू तो लगेगा, तो अब वो सीपीयू तीनों जगह पे तीनों ग्रुप मेंबर्स के पास होना जरूरी है, जहां पे अपन ने 3 अलग अलग चीजें मंगाई है, और फिर वो इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ये आपका मैनेजमेंट है कि आप वो कॉस्ट आपके अगर प्लानिंग में आपके इनिशिएशन के टाइम पे अगर आपको सूटेबल होती है तो तब आप ये ऐसे करोगे, नहीं तो आप फिर क्या करोगे, टाइम आपका मैनेज हो सकता है तो आप एक ही जगह पे मंगवा के ये काम करोगे, एक ही लोकेशन पे मंगवा के, ठीक है हमारा कॉस्ट बच गया लेकिन टाइम बढ़ गया। अगर आप टाइम
मैनेज हो सकता है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपको कहाँ सोचना है, आपको ये सब सोचना है। ये सब आपकी चीजें कहाँ आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में, जब आप वर्क असाइन कर रहे हो। और उसके बाद में क्या होता है कि अब हमको जब इंप्लीमेंट करते रहेंगे, तब हमको लूप में रहना है। ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ में कम्युनिकेशन करके हमको लूप में रहना है, ताकि हम उनको फीडबैक देते रहे, उनके उनसे इनपुट्स लेते रहे, और जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्लोजली मॉनिटर करते रहे। और उसमें अगर कोई कमी आ जाती है, कुछ रिस्क क्रिएट हो जाती है, तो हम उसको विद इन द टाइम वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट कहाँ होती है, जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। और आखिर में द लास्ट पॉइंट इन दिस इज क्लोजिंग। अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को भैया ये प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, अब ये प्रोजेक्ट जब बनाना है, बन गया, आपने किसी भी तरीके से, मैंने बताया आपके तीन तीन सेक्शन है, तीन तरीके से आपका प्रोजेक्ट खत्म होता है। कौन सा तरीका, टाइम लिमिट आ गई, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए, या ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दिए गए, ये तीन तरीके से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ओके, अब यहाँ पे जब हम क्लोजिंग में आएंगे, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रोक्यूरमेंट्स है, जितने भी सामान हमने अगर किसी से कुछ लिया है उधार, तो हमको उनको देना पड़ेगा। किसी का कुछ पेमेंट बाकी है, तो वी हैव टू मेक दैट पेमेंट। और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि ये जो ओवरऑल एक्टिविटीज हमने की है, व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी, and that we need to identify during closing. So every stages requires time. So you cannot say that I will skip initiation or I'll skip planning and I will directly implement and I will not do closing. नहीं, आपको सब शुरुआत से ही, तैयारी से ही करना पड़ेगा, तब आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कहलाया जाएगा। और आपको एक तरीके से आप पीसफुली विल बी एबल टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग का ही हमारा सेलिब्रेट भी पार्ट है।